Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Today we are going to solve some prelims related questions that will be based on economy. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt this question on your own, and then we will see the right answer and also the background information. So let's start. The first question is, with reference to regional rural banks, RRBs in India, consider the following statements. The first statement is, RRBs aim to take banking services to the doorsteps of the rural masses, especially in the remote areas of the country. The second statement is, the Government of India and the concerned state government contribute to the share capital of the RRBs in the proportion of 50%. Now the question is, which of the above statements given above is or are correct? The options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, और neither 1 nor 2. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, and then we will discuss about the answer also. इसका सही आंसर है 1. You have already read about financial inclusions and the role of RRBs in the banking sector of economy. अगर आपने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा है, आपने बैंकिंग अच्छे से पढ़ा है, तो then you must be knowing about RRB. ठीक है, तो RRB एक कंसेप्ट था जिसमें we have the share of the center, the state government and a sponsor bank also. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंट शेयर कैपिटल होता है डिफरेंट एंटिटीज का, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन आरआरबी के बारे में आपको बेसिक इन्फो होना चाहिए. नाउ इफ यू विल सी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इन L2 because if you have read about RRB, if you know you may say some information about RRB, then you are not going to solve this question. You won't be able to solve this question because you need a little bit of depth. तो यहाँ पर इसको हम लोग L2 में कैटेगराइज करेंगे कि आपने बैंकिंग पढ़ा है, यू हैव रेड अबाउट आरआरबी, लेकिन उसमें कितना परसेंट शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्पॉन्सर बैंक का, इसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपसे गलती हो सकता है. ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं. आपको पता है आरआरबी अब तो काफी पुराना कंसेप्ट हो गया है. आफ्टर दैट गवर्नमेंट हैव टेकन मल्टीपल स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन और टू इम्प्रूव दी यू मे से दी क्रेडिट सिस्टम इन दी रूरल एरियाज. आपको पता है जो रूरल एरियाज में अभी भी बहुत ज़्यादा एरिया में आपका इनफॉर्मल लेंडिंग चलता है. इनफॉर्मल लेंडिंग क्या हुआ कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, लोकल मनी लेंडर्स, दे लेंड टू फार्मर्स एंड टू डिस्ट्रेस यू मे से द डिस्ट्रेस पॉपुलेशन एट वेरी हायर रेट. जो है आपका 20% 25% के पे जो है ब्याज पर जो है वहाँ पर पैसा दिया जाता है. तो इससे क्या होता है कि एक डेट ट्रैप टाइप का क्रिएट होता है एंड फर्दर जो है ये मार्जिनाइजेशन हो जाता है. इसी केस के लिए जो है आरआरबी और इस तरह के जो बैंक्स जो हैं वो रूरल एरियाज में खोले जाते हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए और फॉर्मलाइजेशन हो पाए ऑफ क्रेडिट सिस्टम. आरआरबी काफ़ी ओल्ड कंसेप्ट है. इसके बाद गवर्नमेंट ने पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, और आप बोल सकते हैं उसके बाद जो रीसेंट जो जनधन योजना था जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए. तो इस तरह से क्या हुआ है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी भी हुआ है, क्रेडिट सिस्टम भी इंप्रूव हुआ है, और आरआरबीज का भी जो है वो रोल आपका बोल सकते हैं काफी सिग्निफिकेंट रहा है. अगर हम लोग बात करें शेयर की, तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज्ड बैंक कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 50%, 15% एंड 35% रिस्पेक्टिवली. मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 50 रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15 और स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज्ड बैंक का 35. जो स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज्ड बैंक होता है वो बेसिकली गार्जियन की तरह भी काम करती है ऑफ आरआरबी, उसके फंक्शनिंग को ओवरसी करते हैं, और यहाँ पर जो है उनका शेयर इस तरह से होता है. ठीक है, तो ये बेसिकली बोल सकते हैं मल्टी स्टेक होल्डर एक अप्रोच है जहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर लाया गया है एक बैंक के फॉर्मेशन में, और आप बोल सकते हैं उसके वर्किंग में. इस तरह से क्या होता है कि काफ़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है बैंक का, और इसके वजह से काफ़ी रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन आया है. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन कंपेयर टू द अदर क्वेश्चंस. तो जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया? The first option given is Reserve Bank of India. Option B is Department for Promotion of Industry and Internal Trade.
सी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डी इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं DIPI। देखिए ये जो बॉडी है इसको पहले हम लोग DIPP बोलते थे, तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, और यही जो है अभी करंटली हमारे गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने जो आपके फॉरेन पॉलिसीज या बोल सकते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज है कि किस सेक्टर में कितना फॉरेन का मनी आएगा, FPI आएगा, FDI आएगा, इस चीज को जो है आपका ये DIPIIT देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके पहले जो है जो हमारे यहाँ FDI का जो सिस्टम रहा है उसको बहुत सारी बॉडीज ने देखा, जैसे एक टाइम पे FIPB बनाया गया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड, उसके द्वारा देखा गया, फिर जो है DIPP के द्वारा देखा गया, अब जो है ये इस डिपार्टमेंट को ये दिया गया है कि आप फॉर्मुलेट करिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या सिस्टम रहेगा हमारे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज शुगर केन इज अ वेट लूजिंग क्रॉप। सेकंड इज ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। थर्ड इज उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। एंड फोर्थ इज द क्रॉप यील्ड ऑफ शुगर केन इज हायर इन नॉर्दर्न इंडिया दैन इन सदर्न इंडिया। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं रिगार्डिंग द शुगर केन इंडस्ट्री और द शुगर इंडस्ट्री। आपने देख लिया है चारों स्टेटमेंट को, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन कौन से। ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल प्रीलिम्स 2023 की तरह हमने चेंज कर दिया है। पहले तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन अब क्या है यहाँ पर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है, तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ओनली 3। जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है, द क्रॉप यील्ड ऑफ शुगर केन इज हायर इन नॉर्दर्न इंडिया दैन इन सदर्न इंडिया, नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को वी विल अगेन कैटेगराइज इन L3 लेवल। L3 क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, आपको हर इंडस्ट्रीज के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार भी रिपीट करता हूं कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, खास करके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, यू नीड अ हॉलिस्टिक नॉलेज। हॉलिस्टिक नॉलेज क्या होता है? हॉलिस्टिक नॉलेज होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ, उसमें से एक इंडस्ट्री है शुगर केन इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू, आगे जैसे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो GS3 में यू ऑफन गेट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शुगर केन इंडस्ट्री। ठीक है, तो जब आप मेंस के क्वेश्चन में शुगर केन इंडस्ट्री पे कोई आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, यू प्रिपेयर फॉर दैट इंडस्ट्री, तो वहां पर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलता है कि शुगर केन इंडस्ट्री का क्या प्रॉब्लम है, क्या नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो यील्ड ज्यादा है सदर्न इंडिया से कंपेयर्ड। तो इस तरह का नॉलेज यू गेन एक्चुअली फ्रॉम मेंस। और यूपीएससी में आजकल क्या हो रहा है, प्रीलिम्स में यू आर गेटिंग क्वेश्चंस दैट यू रीड इन मेंस, मतलब जो भी कंटेंट आप मेंस के लिए पढ़ते हैं उस पे बेस्ड आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी कारण जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में, ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में अगर आपको हॉलिस्टिक नॉलेज नहीं है तो उस केस में आपको काफी मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे क्रॉप यील्ड ऑफ शुगर केन इज हायर इन नॉर्दर्न इंडिया दैन इन सदर्न इंडिया, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपसे गलती हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि पहला 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड द 4th स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं सबके बारे में। देखिए सबसे पहले क्या है, तो शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन द कंट्री, हमारे कंट्री के हिसाब से बात करें तो, और ब्राजील इज द टॉप कंट्री विथ शुगर केन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, मतलब शुगर केन प्रोडक्शन की बात करें तो ब्राजील इज द टॉप प्रोड्यूसर। ठीक है, एज ऑफ 2008 शुगर केन प्रोडक्शन इन ब्राजील वाज 746 मिलियन टन्स दैट अकाउंट फॉर 39.20 ऑफ द वर्ल्ड शुगर केन प्रोडक्शन। ठीक है, और टॉप 5 कंट्रीज इसके अलावा कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, थाईलैंड एंड पाकिस्तान। ठीक है, जो कि करीबन 73.70% के आसपास है। देखिए एग्जैक्ट डेटा में कुछ चेंज हो सकता है, 73 की जगह 70% हो सकता है करेंटली, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो इंडिया अकाउंट फॉर 19% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ये आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो शुगर केन प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज होल्ड करता है, तो दैट इज समवेयर अराउंड 20%। ठीक है, बट इट ऑक्यूपाइज ओनली 2.4% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। अगर क्रॉप्ड एरिया की बात करें हमारे कंट्री में तो शुगर केन जो है दैट कंप्राइजेस ओनली ऑफ 2.4%। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री आपको बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, मोर देन 4 लाख पीपल, बहुत फार्मर्स को, ठीक है, मिल में जो काम करते हैं उनको, तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो करीबन 4 लाख पीपल को
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद देखें तो शुगर केन इज अ वेट लूजिंग क्रॉप। वी हैव ऑलरेडी सीन कि शुगर केन में जो शुगर केन इंडस्ट्री है इज अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, जहां पर क्या होता है कि जो आपका रॉ मटेरियल है दैट इज मच हैवियर कंपेयर टू दी फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल शुगर होता है वो काफी हल्का होता है कंपेयर टू दी शुगर केन। तो यहां पर क्या है, द रेशियो ऑफ शुगर टू शुगर केन वैरीज बिटवीन 9 to 12%। अभी हमने रिसेंटली एक मेंस में क्वेश्चन देखा था बेस्ड ऑन फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। आपने पढ़ा, आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो अब हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एफआरपी होता है वो करीबन जब तक आपका 10% जो है वो जो सुक्रोज कंटेंट नहीं होता है तब तक आपके शुगर केन का एफआरपी नहीं मिलता है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि 9 से 12% जो होता है वो रफली जो है आपका शुगर टू शुगर केन का जो है वो परसेंटेज होता है। मतलब एक अगर अंदाज लगाएं तो जो अगर 1 kg आपका शुगर केन है, क्या मतलब ऐसे एक रफ आइडिया बता रहे, तो उसमें नियर अबाउट आपका 100 ग्राम जो है वो सुक्रोज निकलना चाहिए। तभी जाके आप बोल सकते हैं सुक्रोज रिकवरी होना चाहिए, तभी जाके जो है वो माना जाएगा कि ये परफेक्ट शुगर केन रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उससे कम उसका हो जाता है, उसमें अगर सुक्रोज कंटेंट घटने लगता है तो उस केस में और भी प्रॉब्लम होता है और उस केस में फार्मर्स को भी एफआरपी नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि महाराष्ट्र जो है वो लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर हो गया इन द कंट्री, वहीं उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर आपको ध्यान देना है, जो स्टेटमेंट आपका 4 गलत हो गया तो ये है कि जो हमारे यहाँ जो ट्रॉपिकल वेराइटी है ऑफ शुगर केन जो कि सदर्न इंडिया में जिसका प्लांटेशन किया जाता है, जिसको उगाया जाता है, उसका जो है ईल्ड ज्यादा होता है कंपेयर टू दी नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। इसी कारण आपने देखा है कि रिसेंट टाइम्स में कर्नाटका, महाराष्ट्र शुगर केन मिल्स बहुत आ गए हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर एक तो ईल्ड अच्छा है शुगर केन का, दूसरा क्या है कि वहां पर जो आपको क्रशिंग टाइम होता है, क्रशिंग जो टाइम बोलता है, जिस समय टाइम जो शुगर केन को क्रश किया जाता है, वो भी वहां पर ज्यादा ड्यूरेशन का है, क्योंकि वहां पर ट्रॉपिकल वेराइटी ऑफ शुगर केन उगाया जा रहा है। तो इसके वजह से क्या है कि सदर्न इंडिया इज एक्चुअली परफॉर्मिंग बेटर देन नॉर्दर्न इंडिया इन दी प्रोडक्शन ऑफ शुगर। तो यहां पर आपका स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज इवैल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, inflation is more likely to positively impact a currency value and foreign exchange rate, and second is inflation is not influenced by interest rates। ठीक है, दो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन एंड द एक्सचेंज रेट, तो आपको बताना है एंड द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो, तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, ठीक है। ऑप्शंस गिवन आर 1 only, 2 only, both 1 and 2 और neither 1 not 2। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है नीदर 1 नॉट 2। दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। देखिए, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट का जो रिलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशंस आज तक नहीं निकाल पाए हैं इकोनॉमिस्ट की क्या इन्फ्लेशन बढ़ने से एक्सचेंज रेट पर इफेक्ट पड़ता है, पर नेचुरली और आप बोल सकते हैं जनरली जो इकोनॉमीज में देखा गया है उस पे बेस्ड अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन इज मोर लाइकली टू पॉजिटिवली इंपैक्ट अ करेंसी वैल्यू एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है किसी भी करेंसी वैल्यू को। कैसे, चलिए देखते हैं। तो इन जनरल व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई दिस वीकेंस अ करेंसी बिकॉज बाइंग पावर इज रिड्यूस्ड। आपको पता है इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हमारे यहाँ रूपी है उसका परचेजिंग पावर घट गया। मतलब अब पहले किसी सामान के लिए वी वर पेइंग 100 रुपीज, नाउ वी आर पेइंग 110 रुपीज। तो एक तरह से क्या हुआ कि परचेजिंग पावर ऑफ रूपी जो है वो घट गया, ठीक है। तो गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव, गुड्स एक्सपेंसिव दिखने लगते हैं एंड दिस टर्न्स इन्वेस्टर अवे फ्रॉम डूइंग बिजनेस। तो इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि हमारे यहाँ बहुत हाई इन्फ्लेटेड इकोनॉमी है, मनी वैल्यू बहुत घटता चला जा रहा है, तो वो कतराने लगते हैं इन्वेस्टमेंट से। नाउ वंस दे मूव इन, अगर इन्वेस्टमेंट से कतराएंगे तो क्या होगा, एफपीआई एंड एफडीआई घट जाएगा, फॉरेन जो हमारे यहाँ इन्फ्लक्स है फॉरेन करेंसी का वो घट जाएगा। अगर फॉरेन करेंसी का हमारा इन्फ्लक्स घट जाएगा तो हमारा रूपी क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट करने लगेगा, ठीक है। विजवी डॉलर या विजवी दूसरे करेंसी को देखें तो वो डेप्रिशिएट करने लगेगा। तो यही होता है कि इन्फ्लेशन जो है आपका जब ज्यादा रहता है तो उस केस में हमारा करेंसी जनरली देखा गया है कि डेप्रिशिएट करता है। हाउएवर बहुत सारे कंट्रीज में ऑपोजिट भी हो सकता है, पर मोस्ट लाइकली यही होता है, ठीक है। व्हेन इन्फ्लेशन इज लो मोर मनी फ्लोज इनटू द कंट्री एंड करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल एज इट बाइंग पावर इंक्रीजेस। तो आपका आपने समझ लिया कि यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होता है, एक्चुअली नेगेटिव इंपैक्ट होता है। अगर हम लोग ऑप्शन 2 को देखें तो इन्फ्लेशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेस्ट रेट। नाउ दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। क्यों बताइए,
क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन तो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है बहुत ज़्यादा तो उस केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसी को तो हम लोग यूज़ करते हैं ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी कारण दूसरा स्टेटमेंट तो डेफिनेटली आपका गलत है। Now moving on to the last question. What does the term Hindu rate of growth refer to in the context of India's growth story from the eve of independence to the liberalization? First option is the growth rate of the Hindu land holdings post independence. B. Population growth rate of Hindu population in the country post independence. The phenomena of sluggishness in the growth rate of the Indian economy before the 1990s. और D. Irrational developmental agenda driven by the majoritarian society. ठीक है, जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है द फेनोमेना ऑफ स्लगिशनेस इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए हुआ क्या था, पोस्ट 1950 एंड प्री लिबरलाइजेशन मतलब 1990 तक आपका हमारे कंट्री में जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ही स्लगिश और बहुत ही स्लो था। इसके पीछे का रीजन क्या था, वी वर बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी। डिस्पाइट कि हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और बहुत जो है उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि हमारे कंट्री का जो है वो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया हो, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ढंग से नहीं आ पाया। अब इसके वजह से क्या हुआ कि उस समय हमारा सर्विस सेक्टर भी ग्रो नहीं किया था, तो हमारा एक कांस्टेंट रेट बन गया जो कि बहुत ही कम था, अराउंड 3 to 3.5% जिससे हम लोग ग्रो कर रहे थे। इसको जो है एक प्रोफेसर थे हमारे राज कृष्णा जी, जो कि एक टाइम पे मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया द पर्सिस्टेंट स्लगिशनेस इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950s थ्रू द 1980s, और इसको उन्होंने नाम दे दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है और आपसे फ्यूचर में भी कहीं पर पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़िए। और मैं अगेन रिपीट करूंगा कि दिस इन्फॉर्मेशन आपको तभी पता चलेगा बिकॉज दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, और यहाँ पर जब तक आपने 5 ईयर प्लान्स नहीं पढ़ा है, अगर आप 5 ईयर प्लान्स के बारे में जानते हैं तो देन यू मस्ट हैव रेड अबाउट द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इसी कारण मैं बोलता हूँ कि हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए मेंस के लिए भी, बिकॉज व्हाट यू आर रीडिंग इन मेंस यू कैन एक्सपेक्ट इन प्रीलिम्स आल्सो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।